So, Bismillahirrahmanirrahim. We will discuss the agriculture economics, right? If you remember, in the previous lecture, we have discussed what is agriculture economics, then we discussed the nature of agriculture economics, that is micro or macro, then we discussed the scope of agriculture economics, and then we discussed the classification of the different products of the agriculture economics. So I hope everybody has got the slides and everybody has understand the things. Any problem you can ask me through WhatsApp group, through voice message, through text, or making a telephone calls, right? Today we will discuss the problems of agriculture sector in Pakistan. Pakistan is an agricultural country and the farmers of this country are facing different problems. So we'll discuss those problems one by one, right? We will discuss the main problems of agriculture sector which has obstructed the growth. Any obstructed means that affected the growth of agriculture sector in our country. You know, agriculture is the backbone of our economic system. It contributes about 21% to GDP, and its contribution towards the GDP is 21% and implies around 45% of the total labor force. And it has engaged the 45% of the total labor force. Labor force we have explained in the previous lecture. You know the labor force. समझ तो ना कितने उसमें से है बेटा? जी सर। क्या मतलब है लेबर फोर्स का? क्या भूल गए? What do you mean by labor force? यानी सर लेबर फोर्स होता है जो जितने बंदे हैं वो काम करना चाहते हैं हाँ और लगे हुए हैं सर। हैं? लेबर फोर्स का मकसद ये बेटा, those people who are engaged in the production of goods and services प्लस यानी इनके साथ ऐड करोगे those who are willing and able to work but at the moment they are unemployed. if you put them together यानी जो एम्प्लॉय हैं और जो एम्प्लॉय नहीं हैं लेकिन वो एबल और विलिंग करते हैं काम करने के लिए, ठीक है ना? इसकी शर्त यही है, इन दोनों को आप मिलाएंगे तो लेबर फोर्स बन जाता है. इसलिए ये कहता है कि ये एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन लेबर फोर्स को इन्वॉल्व करने के लिए 45% है. समझ लिया? इट नियरली कंट्रीब्यूट्स 2/3 ऑफ आवर एक्सपोर्ट अर्निंग. हमारा एक्सपोर्ट का जो अर्निंग है, जो परसेंटेज है, वो 2/3 है फ्रॉम दी एग्रीकल्चर. अच्छा, the growth of agriculture in Pakistan compared to advanced countries of the world is very low. Yani if you compare your agricultural growth to other advanced countries, it is a low. In America, only 2 to 4% of the population is directly engaged in agriculture. यानी अगर अमेरिका को देखें, वहाँ सिर्फ 2 या 4% आबादी का जो है ना वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, यानी दे आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर एंड येट प्रोड्यूसेस सरप्लस गुड्स. उनकी जो प्रोडक्शन है दैट इज सरप्लस, यानी उनकी जो ज़रूरत है उससे ज़्यादा है, वो बाहर जो है ना वो एक्सपोर्ट करते हैं. Whereas in Pakistan, about 60% of the rural population are directly engaged in agriculture, and even then the agriculture production per acre and per worker is far below them. यानी
यानी आप अमेरिका से इसका कंपेयर करें तो पाकिस्तान में 60% जो है ना वो लेबर फोर्स, रूरल पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में इंगेज है, लेकिन इनकी पर एकड़ प्रोडक्शन और पर वर्कर प्रोडक्शन वो जो है ना उनसे बहुत ही कम है। फॉर इंस्टेंस, यानी द प्रोडक्टिविटी per agriculture worker in Pakistan is about $100 in a year। यानी हमारा पर वर्कर जो है ना वो प्रोडक्टिविटी जो है ना वो डॉलर है 100 एज अगेंस्ट $2000 in UK and $2400 in USA and $2300 in Japan। यानी if you take the Japan, America और जो है ना वो UK, so we are below। Similarly, the production per hectare या you can say per acre जो भी कहते हैं in agriculture in other advanced countries of the world is about 1 to 6 times more than in Pakistan। यानी if you compare your per hectare per acre production जो है ना advanced country से किया जाए, they about 1 or to 6 times, यानी मुख्तलिफ country के 1 to 6 times more हैं, यानी they are producing more than per acre per hectare than in Pakistan। एक्सक्यूज मी सर। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये पाकिस्तान क्यों इतना पीछे है, मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से? बेटा ये हम अभी इसके रीजन पे आ रहे हैं बेटा। ठीक यू रेज द गुड क्वेश्चन। ये हम आपको बैकग्राउंड जरा बता रहे हैं और यू आर आस्क वेरी गुड क्वेश्चन कि वो क्या रीजन है, वो क्या वजह है जिनकी वजह से हमारा पर एकड़ प्रोडक्शन जो है ना या पर वर्कर प्रोडक्शन जो है ना वो लो है। असल उन चीज़ों की तरफ हम आ रहे हैं बेटा। ठीक है बेटा? जी सर थैंक यू। बेटा नाउ वी डिस्कस, बेटा आपने जो पूछा यही चीज़, causes of low productivity। The problems of agriculture sector in Pakistan are varied and complex। ठीक है, जो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ नहीं है या प्रोडक्शन पर कम है या प्रोडक्टिविटी कम है, उसके मुख्तलिफ रीजंस है, एक नहीं है, दे आर वेरिड एंड कॉम्प्लेक्स। Low productivity cannot be attributed to any single factor। हमारा जो प्रोडक्शन वो कम है, जिस तरह आपने ये बेटा ने पूछ लिया, ये कम है, इसकी एक वजह या एक फैक्टर नहीं है। It is in fact a combination of number of factors। यानी ये मुख्तलिफ कम्बिनेशन है डिफरेंट फैक्टर्स की। The main problem which are responsible for low production of agriculture in Pakistan can be specified below। यानी वो प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में जो है ना लो प्रोडक्शन का, लो पर एक्टर प्रोडक्टिविटी का जो रीज़न है वो जो है ना अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर 1, underutilization of land। In Pakistan, 65% of the total area is fit for cultivation and remaining has not been brought under cultivation due to unavailability of basic requisites such as machines, technical know-how, irrigation facilities and financial resources। यानी आप इनकी जो है ना कहता है हमारा जो लैंड की जो है ना वो अंडर यूटिलाइजेशन है। हमारा तकरीबन 60% जो भी हमारा क्राफ्ट एरिया है उस ये फिट है कल्टीवेशन के लिए, और रिमेनिंग को हमने कल्टीवेशन के लिए एबल नहीं बनाया गया है। ठीक है ना, अंडर प्लो नहीं है, उस पर हम क्रॉप्स नहीं काश्त कर रहे हैं, सिर्फ 65 पे काश्त कर रहे हैं। और इसकी रीज़न जो है ना हमारे पास वो मशीन नहीं है लेवलिंग करने के लिए। ठीक है ना, वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उस इलाके को पानी देने के लिए पानी नहीं है, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। Due to this, the aggregate production is low।
इसकी वजह से हमारा एग्रीगेट प्रोडक्शन जो है ना वो कम है। एग्रीगेट प्रोडक्शन तो आप समझते ना, हाँ? व्हाट इज एग्रीगेट प्रोडक्शन किफायतुल्लाह? Sir, total production of a country within a year. ये यही बात बेटा, एग्रीगेट ये पूछने का बात है नहीं कि कॉन्सेप्ट आपको साथ साथ क्लियर हो जाए। एग्रीगेट प्रोडक्शन इज द टोटल produce total production of goods and services produced in the country using the available technology and resources and supplied to the people. ठीक है बेटा? अच्छा, second, ignorance, right? The first and foremost cause of low yield per acre is Pakistan is the ignorance of cultivators, यानी इनकी जहालत। yield per acre क्यों कम है, इसकी क्या वजह है? They use primitive methods in agriculture, ये पुराने तरीके जो है ना वो कास्टली इस्तेमाल करते हैं। They believe in fate and blame the nature for their bad crops, यानी ये किस्मत पे यकीन करते हैं, कहते हैं बस जो भी हो गया, अगर कोई फसल ख़राब हो गया ये ऑलवेज नेचर को ब्लेम करते हैं, कहते हैं यानी ये मेहनत नहीं करते हैं, ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, थ्रेशर यूज़ नहीं करते हैं, फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं, टाइम पे जो है ना पानी नहीं देते हैं। अगर कोई चीज़ ख़राब हो गया कहते हैं दे बिलीव इन फेट एंड ब्लेम द नेचर फॉर देयर ब्रेड क्रॉप्स, कहते हैं बस ये खुदा की तरफ से था, ये हमारा ये फसल ख़राब हो गया या नहीं हुआ या नहीं हो गया। Our farmers are extravagant, हमारे ज़मींदार जो है ना extravagant मानी फजूल खर्च हैं, कंजर्वेटिव हैं, सुपरस्टिशियस तवहम परस्त हैं, irresponsible हैं, unambitious हैं, यानी they do not want, unambitious का मकसद है कि हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, हमारा इनकम ज़्यादा हो, हम भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, so they don't believe in these things, that not ambitious, unenterprising, वो इंटरप्राइजिंग नहीं करते हैं जिस तरह करना चाहिए जो प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू हो, ठीक है, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड लव फॉर लिटिगेशन, ये झगड़ा करने के लिए शौकीन होते हैं, यानी आपस में लिटिगेशन के माने झगड़े, यानी आपस में झगड़ने के लिए शौकीन होते हैं। ठीक है बेटा? Yes, sir. नंबर थर्ड, अनइकनॉमिक होल्डिंग। इन पाकिस्तान the major cause of low production is the uneconomic holdings. Uneconomic holdings according to available statistics, यानी जो स्टेटिस्टिक अवेलेबल हो, इसमें थोड़ा सा शायद फ़र्क भी हो चाहिए, नया ये पुराना तकरीबन ये 2018 के स्टेटिस्टिक हैं। According to available statistics, there are 4.07 million cultivators in Pakistan, यानी इतने 4.07 मिलियन हेक्टेयर पाकिस्तान में हैं, and more than 50% इस 4.07 का more than 50% of them possess less than 3 acres of land, यानी इन 4.07 मिलियन काश्त करने वालों में से 50 के पास जो है परसेंट के पास जो है ना लेस देन 3 acres ऑफ लैंड है। इन पाकिस्तान द पॉसिबिलिटी ऑफ, इनकी वजह से यानी 3 एकड़ है हर 50% के पास, इस वजह से इन पाकिस्तान द पॉसिबिलिटी ऑफ एडॉप्शन ऑफ मैकेनाइज्ड एंड साइंटिफिक मेथड of cultivation is not possible, यानी इनका जो है ना वो क्या नाम है, साइज ऑफ होल्डिंग जो है ना वो इकोनॉमिक नहीं है, यानी जिस तरह हमने डिस्कस किया कि 50% के पास जो है ना 3 एकड़ से कम लैंड है, सो दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू यूज द मैकेनाइज्ड एंड साइंटिफिक मेथड्स फॉर कल्टीवेशन। एक्सक्यूज मी सर, बेटा सर ये 1 एकड़ कितने के बराबर होता है? ये बेटा
ये अब देख लेकिन किसके बराबर, एक एकड़ जो है किसके बराबर होता है? मतलब कितने कनाल या क्या उसकी वो भी एग्जैक्ट मुझे वही पता नहीं बेटा। ये एक जो है ना वो चले खैर। नहीं, एक एकड़ होता है, एक हेक्टेयर होता है ना, पर एकड़। ये आप देख सकते हैं किसी में कितना मिलाकर मरले से या कितने उससे हेक्टेयर बनता है। ठीक है बेटा, ये कोई खास वो सर नहीं। एकड़ और हेक्टेयर दोनों हेक्टेयर सेम ज्यादा चीज है? नहीं, ये बाल अच्छा जगहों अच्छा। में बेटा इस तरह होता है ना कि बाल जगहों में जो है ना वो पर हेक्टेयर काउंट करते हैं, पर हेक्टेयर। वो हेक्टेयर एकड़ से बड़ा होता है ज्यादा। ठीक है, हेक्टेयर। ठीक है और बाल जगहों में जो है ना वो कहते हैं कि ये जो है ना ये पर एकड़ लेते हैं। बाल जगहों में ना पर मरला यानी अपना मेजरमेंट होता है ना। ठीक है ना, इसकी जी इतना सर। पैदावार है, पर एकड़ पैदावार हो गया, पर हेक्टेयर पैदावार हो गया। ठीक है ना, लेकिन ये कितना आप कहते हैं कितने मरले से जो है ना, मरले से कहते हैं कितना हेक्टेयर बनता है। यस सर। हाँ ये आप देख ले बेटा। ठीक है ना, ये इतना वो नहीं है। ठीक है ठीक ना, है सर, नेट में देख लूंगी। देख ले ठीक है बेटा। कोई नहीं। अच्छा, लैंडलॉर्ड्स एंड जागीरदार्स, द थर्ड ऑफ द फोर्थ रीजन, it is the legacy of the British Empire that land tenure system was run according to such principle as would make Pakistan downtrodden and humiliated forever. इन्होंने यानी कहता है कि ब्रिटिश जो सिस्टम लिगेसी हमारे मुल्क में छोड़ कर गए हैं, इन्होंने हमारे ज़मींदार को डाउन ट्रोडन बनी गरीब और ह्यूमिलिएशन बना दिया फॉरएवर। किस तरह बना दिया? लेक ऑफ एकर्स ऑफ लैंड वाज गिवन टू बिग लैंडलॉर्ड्स जागीरदार्स बाय ब्रिटिश रूल्स। ये ब्रिटिश रूलर्स ने बहुत बड़े इलाके यानी बहुत बड़े ज़मीन जो है ना इन हेक्टेयर या इन एकड़ जो है ना वो जागीरदार और ब्रिटिश रूलर उन जागीरदार को दे दिया। क्योंकि इससे पहले जो था, इनसे पहले लैंड जो था ना वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थे। ये इन्होंने परमानेंट सेटल के मुताबिक उन्होंने ये ज़मीन मुख्तलिफ जगीरदारों में और ख़ान में जो है ना और चौधरी में तकसीम कर दिया गया। ठीक है ना, पहले ज़मीन की जो काश्त होती थी उस काश्त का जो पैदावार जो है ना वो एक उसमें कामन जगह में जाता था, फिर लोगों को तकसीम होता था। लेकिन इन्होंने उस ज़मीन को तकसीम करके चौधरियों को, खानों को, वडेरों को और उन्होंने परमानेंट सेटल के नाम से उन्हीं को दे दिया। उन्हों को देने के बाद क्या हो गया देख ले, इंस्टीड ऑफ कल्टिवेटिंग द लैंड देमसेल्व्स, यानी उनके पास ज़मीन तो है, खान के पास हो, चौधरी के पास जो है ना है, दे गेट इट कल्टिवेटेड बाय अदर फार्मर्स बाय डिवाइडिंग लैंड इनटू पीसेस। यानी उन्होंने ये इस तरह करते हैं, वो करते हैं कि भाई अपना वो ज़मीन इंस्टीड ऑफ कल्टिवेटिंग द लैंड देमसेल्व्स दे गेट इट कल्टिवेटेड बाय अदर फार्मर्स बाय डिवाइडिंग द लैंड इनटू पीसेस। वो ज़मीन के जो है ना थोड़ा थोड़ा हिस्से करके मुख्तलिफ ज़मींदार या टेनर को दे देते हैं और वो काश करते हैं, वो खुद काश नहीं करते हैं। सो द लैंडलॉर्ड यूज टू टेक द लाइन शेयर ऑफ यील्ड, और ज़मींदार जो खान जो है, लैंडलॉर्ड जो है, उसका बड़ा हिस्सा जो है, लाइन शेयर जो है, मेन हिस्सा है, वो लेता है। और द कल्टिवेटर्स डू नॉट वर्क विद सोल एंड हार्ट, और जो काश करने वाला है, जो टेनेंट है, जो स्मॉल फार्मर्स है, जो सबसिस्टेंट फार्मर्स है, वो यानी पूरा दिल से काम मेहनत नहीं करते हैं। जबकि चूंकि वो कहते हैं कि भाई इसका मेन शेयर जो है ना, इसका जो लैंड शेयर जो है, दैट इज गोज टू दी ओनर्स ऑफ द लैंड। ठीक है ना, उसने ज़मीन को हिस्सों में तकसीम किया है और उनको दे रखा है, और जब फसल आता है तो ज़्यादा हिस्सा वो लेता है, इसलिए वो सही दिल से मेहनत नहीं करते हैं। दिस एडवर्सली अफेक्टेड द प्रोडक्शन, इस वजह से ये प्रोडक्शन इसका इफेक्ट हो गया। अच्छा, another reason of low productivity, natural calamities. Natural calamities play an important role in the growth of agriculture. ये natural calamities जो है ना, that is play an important role in the growth of agriculture. If the rain is timely, evenly distributed, then there is no hailstorm and attacks of pests. The production is plentiful. ये कहता है कि अगर बारिश टाइम पर हो और वक्फे के मुताबिक जो ज़मींदार चाहे उसके मुताबिक उठा दे चाय गाड़े लगा कवा खाने का शोर होगा यार। And there is no hailstorm.
इसमें जो है ना जलबारी न हो और पेस्ट की जो है ना वो मुख्तलिफ पेस्ट जो है ना वो अटैक न करे तो प्रोडक्शन होता है। लेकिन एग्रीकल्चर क्या होता है, इज शॉर्ट द गैम्बल ऑफ रेंस, ये बारिश का गैम्बलिंग है, क्योंकि अगर बारिश टाइम पर नहीं हो, ठीक है ना, तो पैदावार कम होता है। पार्टिकुलरली इफ यू गो साउदर्न एरिया, ठीक है ना, उसी में जो है ना अक्सर वो रेन फीड के इलाके हमारे खैबर पख्तूनख्वा में रेड फीड पे मुनहसर हैं। अगर टाइम पे बारिश न हो उनका पैदावार कम ही होता है। सही जिन्हें बाल कंगाल का क्या शोर मुको है यार। अच्छा सुरना बाबू से 6 वो सदा वो सकोजा sixth, lack of adequate finance. The ZTBL, you know the ZTBL? ये ZTBL क्या है? ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड, जिंदाबाद बेटा, ठीक है बिल्कुल। The ZTBL, the ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड, it is previously या formally known as Agriculture Development Bank, इसको पहले Agriculture Development Bank कहते थे। Commercial banks, cooperative banks are the main supplier of finance to farmers in Pakistan. यानी ये ज़रा तरक्याती बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक्स हो गया, ये मेन सप्लायर हैं, ठीक है, फाइनेंस का टू फार्मर्स को पाकिस्तान में। Since the financial facilities are not inadequate, फाइनेंशियल फैसिलिटी जो है ना वो काफ़ी नहीं है, the farmers therefore have to depend on loan given by friends, relatives, money lenders। ये हमने कहा जो सोर्स हमने पढ़ लिया, सारी तरह बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, दूसरे कमर्शियल बैंक जिसमें यूबीएल है, हबीब बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वो मेन सप्लायर हैं सोर्सेज के फाइनेंस को, ज़मींदार को। चूँकि वो सफिशेंट नहीं है, वो ले नहीं सकते हैं। ये हमें बाद में पढ़ेंगे कि इनकी बहुत किस्में होते हैं, ठीक है, इनके क्या मसले होते हैं, ये तफसील में हम क्रेडिट में पढ़ेंगे। लेकिन वो लोन उससे नहीं ले सकते हैं, इसलिए वो जाते हैं दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास और मनी लेंडर के पास। ड्यू टू द इनएडुकेट सप्लाई ऑफ लोन फ्राम इंस्टीट्यूशन सोर्सेज वही जो हमने बात बताया ऊपर तक, कमर्शियल बैंक जो है ना वो कोऑपरेटिव बैंक, the farmers are mostly not able to purchase modern inputs of agriculture in time। चूँकि इनके पास फाइनेंस नहीं होता है, so they are not in a position to buy the modern inputs, that is insecticide, pesticides, recommended fertilizer, और जो भी ट्रैक्टर, मशीन, हार्वेस्टर, थ्रेशर जो भी हो, they are not in a position to utilize such thing on their land, therefore their productivity or production is low। अच्छा, low cropping intensity 7। अच्छा, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी। At the present stage of our development, there is a low level of cropping intensity in the farm sector। क्रॉपिंग इंटेंसिटी समझते हैं आप? हाँ नहीं सर। बेटा, क्रॉपिंग इंटेंसिटी refers to raising of a number of crops from the same field during agriculture year। यानी एक पर्टिकुलर पीस एग्रीकल्चर ईयर, मतलब फर्ज का साल का हो, कितने दफा वो क्रॉप जो है ना क्रॉस करते हैं। यानी इसको फार्मूले के तहत आप इस तरह निकाल सकते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज इक्वल टू ग्रास क्रॉप्ड एरिया डिवाइड बाय नेट एरिया सोन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। तो ये आपको क्रॉपिंग इंटेंसिटी देगा। ये आप
ये बाद में जो है ना हम ये पढ़ेंगे तफसील। आप देख सकते हैं किसी चीज में क्रॉपिंग इंटेंसिटी किसको कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, लो क्रॉपिंग ये द सुख शोर के दामाशुमान बंद कर यार। At the present stage of our development, there is a low level of cropping intensity in the farm sector. यानी हमारा जो cropping intensity है वो आपने समझ लिया कि क्या कहते हैं, ठीक किस चीज़ को कहते हैं, ये low है। Area under double crop is limited, यानी जहाँ जो है ना डबल क्रॉपिंग जो है ना ये कम उगाया जाता है, कम किया जाता है। The agriculture output needs to be increased by developing suitable crops and varieties of seed which help double cropping in practice। यानी ये कहते हैं कि वो चूंकि ज़मींदार के पास वो varieties नहीं है जिनको काश्त करके ये साल में 2 या 3 दफ़ा पैदावार ले सके, ठीक है ना, ऐसी वैरायटीज नहीं है, इसलिए इनकी प्रोडक्शन जो है ना साल का कम है। अच्छा, another one, scarcity of irrigation water। अच्छा, scarcity of irrigation water causes a serious limitation in the expansion of crop area in Pakistan। पानी की जो किल्लत है, that is the serious limitation फॉर एक्सपेंशन ऑफ क्रॉप्स इन एरिया, यानी हम अपने क्रॉप ज़्यादा नहीं उगा सकते हैं, काश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि असल चीज़ जो है ना पानी है। द लोअर वाटर सप्लाईज, एक तो पहला कम है, लॉसेस फ्रॉम वाटर कोर्सेज की जो लॉसेस हैं, वाटर कोर्सेज समझते हैं आप इन द फील्ड हैं? बेटा जो खेत के अंदर जो ले जाते हैं ना वो मेन स्ट्रीम से जो नदी फील्ड को ले जाते हैं, ठीक है ना, यानी मेन स्ट्रीम से या नहर से, ठीक है, नदी से आपके खेतों पे जो जाता है ना उसी को कहते हैं वाटर कोर्सेज, यानी उसको पुश्तों में लखते कहते हैं, लखते पुश्तो, ठीक है ना, लखते। अच्छा, दी वाटर रेट्स लगता है कि हो ओबो वेस्ट न की कहना बच्चे अगर लखतों के राजी चिकल राशि करना लखतों की ना कम दगा जी, के जी। फील्ड एंटर की कि ना अगर कि अक्सर अगर दगा वना उबुजी करना कमी की, ठीक शी हाँ कम शा सही, हाँ लासी मतलब लारी की राजी राजी लारा एब्जॉर्ब की शी कहना एब्जार शी करना या दगा से बल से ठीक वजह शी। ची लगाशी। Losses from सही। water courses in the field are the serious problems of farm sectors। The availability of water has to be increased by construction of small dams। कहता है कि अगर आप वाटर अवेलेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो you can construct small dams, इंस्टॉलेशन ट्यूबवेल लगाएं फॉर रेजिंग दी एग्रीकल्चर आउटपुट। यानी आपके पास ये चॉइस है कि अगर आप पानी ज़मींदार को मुहैया करना चाहते हैं तो या छोटे स्मॉल डैम बनाएं, उससे पानी आएंगे मुख्तलिफ जगहों में, या जो है ना ट्यूबवेल लगाएं, ठीक है। अच्छा, another one, 9, inadequate of supply of inputs। The farm productivity has been greatly increased in Pakistan through the use of modern inputs like improved seeds, chemical fertilizer, pesticide, mechanical machinery। यानी कहते हैं ठीक है पाकिस्तान में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो चुका है और फार्मर जो है ना वो इम्प्रूव सीड यूज़ कर रहे हैं, रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मैकेनिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी फॉर ब्रॉड यूज़ एंड सस्टेनेबल प्रोग्रेस, यानी इस प्रोग्रेस को सस्टेन करने के लिए, ठीक है ना, इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी the supply and application of such inputs should be adequate and regular। यानी इसी पैदावार को, इस प्रोडक्शन को सस्टेन करने के लिए या मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, या एक्सपेंड करने के लिए इनकी जो इनपुट की जो सप्लाई है, जिस तरह हमने ऊपर इनपुट्स की बयान किया, इम्प्रूव सीड हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, मशीनरी हो गया, ट्रैक्टर हो गया, थ्रेड जो भी हो, दैट शुड बी मेड रेगुलर। द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक effective measure for arranging adequate and continuous availability of modern inputs
एट द राइट टाइम एंड राइट प्लेस इन द कंट्री। यानी गवर्नमेंट जो है ना ऐसे मेजर लेना चाहे कि इन इनपुट्स को राइट टाइम पे भी पहुंचाए और राइट जगह में भी पहुंचाए। देखो फॉर एग्जांपल ज़मींदार जो है ना गांव में है, एक गांव है, वहाँ लोग काश्त कर रहे हैं, तो वो गांव में कोई ख़ास जगह जो है ना उनके लिए मुकर्रर किया जाए, वहाँ ले जाए, ताकि वो टाइम पे जो है ना अपनी चीज़ें ले लें, इनपुट्स लेते हैं, पेस्टिसाइड लेते हैं, इंसेक्टिसाइड लेते हैं या और कोई चीज़ें लेते हैं, वो जगह में लेकर। एक आदमी है वो काफ़ी शहर में है, शहर में अगर ले जाने पर नहीं जा सकता है या उसको पता नहीं होगा कहाँ है, तो इसलिए कहते हैं ये राइट टाइम पे भी होना चाहिए, राइट प्लेस भी होना चाहिए, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पर uncertain rain. As the artificial rain facilities are lacking and our farmers have to depend at the mercy of rainfall only. जो भी आर्टिफिशियल इरिगेशन है, ठीक है ना, ट्यूबवेल हो गया, डैम हो गया, और जो भी है ना मैन मेड जो है, ठीक है ना, जो भी मैन मेड सोर्सेज हैं, दे हैव, वो कम है, इसलिए फार्मर जो है ना उसी पे डिपेंड करता है, रेनफॉल पे। इन सम रीजन्स द रेनफॉल आर जनरली अनफेवरेबल। यानी बाज़ इलाकों में, बाज़ रीजन में, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि साउथ की तरफ जाएं, वो रेंज जो है ना वो फेवरेबल नहीं है, टाइम पे नहीं होते, जो ज़मींदार जिस वक्त चाहते हैं वहाँ नहीं होते हैं, एंड इन इट अफेक्ट्स द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और ये आपकी प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। Another thing, 11, water lodging and salinity. Water lodging and salinity, ये अब दोनों चीज़ों को, द ट्विन प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, उस दिन शायद हमने क्लास में डिस्कस भी किया था। वाटर लॉजिंग एंड सैलिनिटी सीम और थूर है, ठीक है बेटा, सीम और थूर अब समझ लेना, हाँ Yes, sir. हाँ बेटा, सीम और थूर जो है ना ज़मीन में जो है ना वो पानी जैसा पैदा होता है, वो जो है ना ज़मीन जो फिर प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं देता है, वो काबिल काश नहीं रह जाता है, ठीक है ना। तो ये कहते हैं ये दो प्रॉब्लम है, दे हैव बैडली अफेक्टेड द परफॉर्मेंस ऑफ फार्म सेक्टर। यानी इन दो मसलों की वजह से ज़मींदार जो है ना, द फार्मर्स आर सफरिंग एंड दे आर नॉट गेटिंग इनफ प्रोडक्शन फ्रॉम द फार्म सेक्टर। तो इसलिए इन दो ट्विन जो है ना प्रॉब्लम जो है ना, वाटर लॉजिंग और सैलिनिटी का इलाज होना चाहिए। अच्छा, अनदर थिंग बेटा, प्लांट डिजीजेस। According to official estimates, production of crops drops by 50% due to the plant diseases. कहता है ये ऑफिशियल एस्टिमेट के मुताबिक, ऑफिशियल स्टेटिस्टिक के मुताबिक हमारा जो प्रोडक्शन है ऑफ क्रॉप्स का, वो 50% जो है ना वो कम होता है ये डिजीज़ की वजह से, जिसमें पेस्ट अटैक करता है या और कोई चीज़ अटैक करते हैं। सो द प्राइसेस ऑफ पेस्टिसाइड and insecticides have gone up, therefore their usage has declined. कहता है इन बीमारियों से कम करने के लिए चाहे पेस्टिसाइड ज़रूरत होता है, इंसेक्टिसाइड ज़रूरत होता है या जर्मिसाइड ज़रूरत होता है, उनकी कीमतें जो ना बढ़ गए हैं, वो फार्मर के बस बाहर हो चुके हैं, therefore they are unable to buy, to purchase